Rhodes just rug pulled her NFT project and ran away with $1.5 million. Lana Rhoades started an NFT project basically and ran away with $1.5 million. Can you do that? Now she's claiming it's not her fault. Her community was just getting too negative for her. One of those negative comments was about how this person can't feed their kids because they invested it all into a Stars JPEG collection. Quote, I spent what I can't lose. Spent 4K. No job, have a 2-year-old son. If only someone bought my Christmas, Lana. Yeah, and apparently Lana Rhoades saw this post and said, hey, this is getting way too negative for me. I'm out. I didn't know these people wanted to feed their kids. Apparently, she's too busy feeding her own kid to worry about this. When asked yo, diapers are expensive. About this, she said, yo, diapers are expensive. That's right, guys. She needs that $1.5 million. Now, let's just say what this is. From Lana Rhoades to the person who invests their last dime into it, this is the dumbest story we've ever talked about. True. By far. Just listening to it feels like this. But here we are, so let's just embrace what it is. Let's just jump into it, my friend. I'm your host, CoffeeZilla. Okay, CoffeeZilla. Let's talk about this. A star gone influencer offered an investment to her fans, and then they invested $1.5 million. She ran away with the money. I'm gonna say right off the top, come real close, come here. We have to have a talk, okay? If you fell for this, we're in trouble. This is not good. Now, to be clear, she's wrong for doing this. I want the best for you guys, and I'm sorry that you got scammed. But it's looking bleak if you fell for this. This was not a hard one to spot. This was not a big gotcha. But anyways, with that disclaimer out of the way, let's talk about the story, okay? So look, Lana Rhoades started an NFT project full of a bunch of pictures of basically... So I bet you, here's the thing. She doesn't even properly know or understand what NFT is. Lana Rhoades, what she is a very big brand. And I'm pretty sure she has managers. उसके तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे चंटू मंटू हैं जो उसके लिए काम करते हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. बेसिकली उनका बिजनेस ये है कि, या फिर उनका रोल ये है कि उस इंसान का रेवेन्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट हम कितना ले जा सकते हैं, जो भी इस वक्त करंट ब्रांड वैल्यू चल रही है उसको हम कितने तरीकों से कैपिटलाइज कर सकते हैं. एंड ये बहुत डेंजरस बिजनेस मॉडल होता है क्योंकि इसमें बहुत बार इंसान एथिक्स, आप क्या तरीके यूज करने वाले हो, क्या लॉन्जिविटी है, हमारे ब्रांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, जैसे कि इसमें भयंकर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये कंसिडर नहीं करता. इंसान के दिमाग में पहली प्रायोरिटी सिंपल सी ये रहती है, खोपड़ी के ऊपर बहुत बड़ा डॉलर का साइन, कैसे हम बहुत जल्दी से पैसा बना सकते हैं. हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी बेच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम ये भी बेच सकते हैं, हम ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. सब कुछ करो, बस पैसा आता है. 100 स्ट्रीम स्टार्ट कर दो पैसा कमाने की अपने फैन से, क्योंकि आपके पास 1 लाख फैन है तो 1 लाख फैन से बेसिकली कुल मिला की चीज होती है हम कितनी चीजें उनको बेच सकते हैं जिससे हम पैसा चूज डालें, क्योंकि फैन तो सठियाए हुए हैं, इन्वेस्टेड है वो ब्रांड में. Cartoon versions of herself. So these were the 2 NFTs. And she told people she was going to work super hard to basically make this a valuable investment. The NFT project was called CryptoSys, and she said, my number one goal for the project is to increase the value of CryptoSys NFTs and make it a lucrative investment for holders that they can sell for more than they paid to mint. And this is basically my big beef with this project. They made it sound like an investment. Nowhere was it like, hey, buy my art. Clearly, this was something where it was like, no, you're going to make money on this project. Well, and that's a sell, right? जिंदगी में धंधे का एक सिंपल सी चीज़ ही होती है ना कि you use the language that is intended to sell. That is not intended to tell reality. अगर कोई भी धंधा अपनी रियलिटी बताए अपने ब्रांड की, हम क्या बेच रहे हैं उसकी, तो आप 50% लोगों को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर दोगे क्योंकि रियलिटी बोरिंग है और रियलिटी से मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे अभी इमीडिएटली इसको अपना पैसा डालने की जरूरत है इस चीज़ में. किसी को आज तक फील नहीं हुआ. अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार ये मेरा फॉर एग्जाम्पल कोर्स आया एक एंड इतनी हेल्प करेगा तुम्हारी, इतनी हेल्प नहीं करेगा. सच्चाई ये है कि कोई भी कोर्स आपकी एक्चुअल में घंटा हेल्प नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप ऑलरेडी पेल चुके हो 80% एफर्ट उसमें. मैं बस चीजें स्ट्रीमलाइन कर सकता हूं. मैं इतने ही प्रश्न हैं जिनके आंसर कर पाऊंगा, उसके बियॉन्ड किसी इंसान की औकात ही नहीं है वो आंसर करने की. इंसानी लिमिटेशंस, मैसेज की लिमिटेशन, तुम्हारी लिमिटेशंस, ये सारी चीजें. यहां पे आएगा मार्केट की लिमिटेशंस, एनएफटी का रियलिटी, एनएफटी की एक्चुअल में किस तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट चल रही है, कौन सी एनएफटी है, कितना परसेंटेज है जो लोग एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, क्या ये बबल है कि नहीं है, कितनी सारी चीजें. ये हम आपको नहीं बताएंगे. हम वो चीज बताएंगे जिससे दुनिया का जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इंसान है उसको ये लगेगा अच्छा मुझे पैसा डाल देना चाहिए. वो क्या सेंटेंस है? तुम्हारा पैसा बनेगा इसमें, तुम्हारा फायदा होगा इसमें. That becomes the reality. Repeats this idea later
She says, quote, "The brand plus value will keep growing with every drop." So her fans thought this was going to be some kind of long-term investment, I guess. And of course, it wasn't. If you look at her roadmap, it was pretty clear things were promised that weren't delivered on. And of course, one of the biggest things was an exclusive community to speak with Lana. This apparently was their reasoning for having to raise so much money, $1.5 million, precisely because they weren't a pump and dump. Unlike other pump and dump projects, we don't just plan on stopping after minting, so we actually have to be able to fund all that stuff. So you heard it right there. This is pump and dump is also something जो इस वक्त जितने लोगों को पता नहीं, but I'm very kind of happy कि इंडिया में इतना ज़्यादा इसका वो नहीं चलता जितना अमेरिका में क्रेज है NFTs एंड इतना चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे 400 लोग वीडियोस तो बना लेते हैं NFT एंड द ट्रूथ इज इंडियन एक्चुअली बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है. सो आप सुन लोगे, आप एक्साइटेड हो जाओगे, और आपको बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ में घुसेड़ना भी चाहेंगे, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं ये हो रहा है, इसमें इस इंसान ने इतने रुपए कमा लिए, ये तुम्हारा पेंटर था, ये पहले डिजिटल आर्टिस्ट है जिसने एक्चुअली इतने मिलियन रुपए कमाए अपनी पेंटिंग से, यू नो, ये सब चीज़ें जिनको हुक की तरह यूज़ किया जाता है. बट द ट्रूथ इज कि मोस्टली लोग एटलीस्ट इंडिया में वी आर लाइक यू नो दे डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल सादा ढंग से कि कहाँ पे खरीदनी है, फिर या फिर क्या खरीदनी है, और फिर कैसे बेचते हैं, ये चीज़ होती क्या है, इस पूरी चीज़ को दिमाग कैसे लगाना है. एंड दैट एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग लाइफ में. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टू डू विद योर मनी व्हेन यू डोंट नो समथिंग. मे बी 4 लोग जो कह रहे हैं पेल दो पैसा, डोंट डू दैट. मे बी फर्स्ट लर्न द फकिंग थिंग. इट्स योर मनी, इट्स योर मदर फकिंग मनी. डूब जाएगा ना अगर, वो 4 लोग नहीं लौटाएंगे, वो 4 लोग तुम्हें दिखेंगे भी नहीं. वो 4 लोग उसके बाद अपनी टोन चेंज करने ये बोलते हैं कि हाँ यार ये तो बिजनेस यही है ना, यही दैट्स लाइक द नेचर ऑफ द फकिंग थिंग ना ब्रो. लाइक इसमें हो सकता है किसी का इतना फट जाए, इतनी सारी वर्क नहीं करती, एंड हू नोज. एंड मोस्टली एक और चीज मैं लास्टली बोलना चाहूंगा, द थिंग इज कि NFTs को पुश कौन कर रहा है? इट्स पीपल हु आई एम प्रिटी श्योर आर देमसेल्व्स नॉट बाइंग NFTs. यूट्यूबर्स, दे आर पुशिंग इट बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है थर्ड पार्टी से, एंड दैट पैसा इज इनफ फॉर देम कि उनको NFT में इन्वेस्ट करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ रही. इट्स अ फैक्ट. बहुत सारे लोगों को जो नहीं मानेंगे बात, मत मानो, इट्स ऑल राइट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस प्रजाति की हम बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में तगड़ी तरह से पुश कर रहा है NFT को इन द वर्ल्ड, इज इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स द लीस्ट रिस्क टेकिंग प्रजाति है जो प्रोट्रे कर रही है द मोस्ट रिस्क टेकिंग प्रजाति में. समझना इस चीज को, यही है उनका पूरा खेल, यही है उनका पूरा मार्केटिंग का खेल और एडवर्टाइजिंग का खेल. एक यूट्यूबर का पूरा खेल यही है कि मैं आपको मोस्ट रिस्क टेकिंग चीजें जिनके बारे में आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे इस वीडियो से 5 लाख या 10 लाख एक झटके में मिल रहा है सिर्फ 60 से 90 सेकंड के लिए कुछ बोलने के लिए. यस, इतना कमाते हैं वो एक वीडियो से, तो मैं कौन मना करेगा? और मैं बोल दूंगा द ट्रूथ इज मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर इतने हाई रिस्क टेकिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को अगर मैं हफ्ते में या एक महीने में 4 बार बोल देता हूं मैंने 40 लाख रुपए कमा लिए, 40 लाख रुपए कमा लिए, मेरे को NFT से पैसा कमाने की जरूरत नहीं दिख रही. लेकिन मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा वो 10 लाख की जो काव है ना उसको कैश करने के लिए. एंड ये बहुत डेंजरस चीज हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का फिर धर्म और इनका कोई एथिक्स या वैल्यूज आपको नहीं पता, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड वे में जब बोलेगा तो वो क्या करेगा, जो विकिपीडिया में बेसलाइन इंफॉर्मेशन है पहले वो कैप्चर करी मैंने, मोस्ट बेसलाइन इंफॉर्मेशन की NFT ये होती है. अब मैं तुम्हें समझाता हूं. कोई भी इंसान 5 मिनट अगर व्यक्त करे अपना, सिंपल स्पेंड करो तुम इंटरनेट पे, तुम एक NFT की क्या होती है तुम समझा लोगे, किसी को भी इंसान समझा लेगा अगर उसको गोल है कि मुझे NFT के बारे में आज एक वीडियो बनाना है. कोई इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एंड में फिट कर देना. और रिटन ऑलरेडी आती हैं प्री कंडीशंस स्पॉन्सरशिप्स में, और ये बातें मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई यूट्यूबर बोलेगा नहीं. ऑटोमेटिकली आता है कि आपको ये सब चीजें कुछ बोलनी है जो कि स्पॉन्सरशिप्स की स्क्रिप्ट में होती हैं, कि मैं ये इन्वेस्ट करता हूं, मैंने ये चीजें करी, मैं करके जितने भी स्टेटमेंट होती हैं ये स्क्रिप्ट में लेकर आती हैं, ये कंडीशंस होती हैं, आपको बोलनी ही बोलनी है इफ यू वांट द कैश. तो जो आपको लग रहा है ये इन्वेस्टर मैं भरोसा करता हूं, आई वुडंट से इन्वेस्टर, यूट्यूबर जिसपे मैं भरोसा करता हूं, ये बोल रहा है मैं वर्ड का इस्तेमाल करके तो 100% या बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा होगा. वेरी लाइकली दैट, एक्चुअली वेरी लाइकली क्या 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वो सेम स्क्रिप्ट है, मैं सेम धंधा करता हूँ. सो या इट्स इंक्लूडेड. एंड जहां तक मैं जानता हूं यूट्यूबर्स स्पेशली बहुत ही रेयर होता है जो एक्चुअल में फाइनेंस की उनको ABCD भी पता है, उनको इन्फ्लुएंसर की डिक्शनरी पता है. ये मैं नहीं कहूंगा, दे नो अ लॉट अबाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बट फाइनेंस की एडवाइस देने आ गए हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर दे नो जिल्च अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, घंटा कुछ नहीं पता. वो तुम्हारे विकिपीडिया के बेसलाइन इंफॉर्मेशन के ऊपर खेल रहे हैं, बट दे मेक फक लोड ऑफ मनी.
सो आई डोंट थिंक उनको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है. I'm pretty sure वो कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान अगर 10 से 20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ऑफकोर्स वो इन्वेस्ट तो करेगा चीजों में. बट दीज आर नॉट पीपल जो कह रहे हैं कि मैं मिलियनर बना फ्रॉम इन्वेस्टिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो कह रहा है ओके मैं मिलियनर बन चुका हूं सोलली, मैं एक दिन बैठा, मैंने एजुकेशन ली, मेरे पास फाइनेंस की डिग्री है और मैं इन्वेस्टिंग करता हूं, मैंने मिलियनर बन चुका हूं, या मेरी सैलरी इतनी थी, इस सैलरी में इतनी कैपिटल मैंने हर महीने अलग करी और फिर मैं इन्वेस्ट करता रहा, फिर मेरे पोर्टफोलियो से 5 साल में 3 साल में इतने रुपए बने. एंड मैं अब आपको सिखाने वाला हूं. स्किल्स हैं उस इंसान के पास, नॉलेज है, डिग्री है, एक लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी है. फिर आता है यूट्यूबर जिसने अपनी पूरी जिंदगी के 5-3 साल अपना चैनल बढ़ाने में लगाए. कब उसने इन्वेस्टमेंट की नॉलेज की रही? आपने 5 दिन व्यतीत करे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने में. इट्स एक्चुअल प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट है वो. लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, लोग आईवी लीग स्कूल्स जाते हैं भाई, वॉर्टन जाते हैं, येल जाते हैं, आईएम जाते हैं, तब जाके वो सीखते हैं चीजें होती हैं ढंग से, और फिर वो करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, ऐसी जो जॉब्स होती हैं फाइनेंस के अंदर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और तबाह की सैलरी पेलते हैं. उन पर मैं आई ट्रस्ट. बट अदर देन दैट, एक इंसान जिसने लास्ट 3 साल तुम्हें जो इस वक्त इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की नॉलेज सिखाने को खड़ा हो गया एकदम से विकिपीडिया बेस्ड, बट उसके लास्ट 3 इयर्स एक्चुअली में पूरे गए हैं क्योंकि दिन में 24 घंटे सबके पास हैं. ये कभी मत भूलना, 24 घंटे ही हैं सबके पास. जो तुम्हारे पास 24 घंटे भाई, वो उसके पास भी थे. अगर वो 24 घंटों में से 8 घंटे से 12 घंटे यूट्यूब चैनल बड़ा करने में, अपना इंस्टाग्राम बड़ा करने में, इन सब में लगा रहा है, तो भाई वो पढ़ाई करने में नहीं लगा पा रहा. जो इंसान पढ़ाई करने में लगा रहा है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की, जो कमर तोड़ रहा है एमबीए करने में या फिर बीकॉम करने में या मास्टर्स करने में, और फिर एक्चुअली उसको नॉलेज है उस चीज की, उसने फिर एक्सपीरियंस किया बड़ी बड़ी फर्म्स में, वो इंसान यूट्यूब में फिर बैठ कर नहीं लगा रहा, अपनी कमर तोड़ रहा है. दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, पूरी फुल टाइम जॉब्स हैं. और ये बहुत ही खतरा वाली, मैं पता है द रीजन व्हाई दिस वीडियो मेक्स लाइक काइंड ऑफ इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दिस इज बिकॉज हुआ क्या हमारी जनरेशन में इस वक्त, ग्रेट मैनी क्रिएटर्स सी दिस थिंग, जो इंटरनेट पे बूम आ रहा है, जिसे कहते हैं तुम फिनटेक कह लो, क्रिप्टो कह लो, इन सब चीजों का. एंड इट्स जस्ट एन एडवर्टाइजिंग बूम बिकॉज बहुत सारी फर्म्स बहुत तगड़ी तरह से क्रिएट हो रही हैं और बहुत तगड़ी फंडिंग उठा रही हैं. फर्म्स फंडिंग उठाने का मतलब ये नहीं वो प्रॉफिट में, पहली चीज वो फंडिंग उठा रही हैं, वो लॉसेस में ही होती हैं मोस्टली. उसको हटाओ क्योंकि वो तुमसे कंसर्न नहीं करता. इस वक्त मार्केट में, दुनिया में, आई डोंट थिंक इससे पहले, क्योंकि मैं तो 5 से 6 साल से यूट्यूब कर रहा हूं, मार्केट में इतना ज्यादा पैसा कभी था ही नहीं जितना इस वक्त है फॉर अ फकिंग कंटेंट क्रिएटर. मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा पैसा है मार्केट में, करोड़ों में, बिकॉज दीज कंपनीज की फंडिंग इतनी, इनकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का बजट बहुत ज्यादा है. मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं करोड़ों में, मैं कह रहा हूं क्रिएटर्स को करोड़ों दे रहे हैं. दैट्स व्हाट आई मीन बाय करोड़ों. एक क्रिएटर, आई नो क्रिएटर्स इनको करोड़ों रुपए की डील साइन हुई है. सो जब इतना पैसा मार्केट में पड़ रहा है, गिर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर कोई जितना, रिगार्डलेस ऑफ उनकी नॉलेज कितनी है या वो कितना जानते हैं, सब कोई उठाना अपनी जेब में डालना चाहेगा. दिस इज ह्यूमन नेचर एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. यानी कि होड़ जो चल रही है, जो रेस है, वो ये है कि भाई पैसा बहुत ज्यादा है, मेरे को पैसा अपनी जेब में डालना है. तुम नहीं, क्योंकि वो पैसा जेब में आ कैसे रहेगा, अभी ये क्वेश्चन पूछा है. तुम्हें कुछ बेचना है उनको, उसके लिए उनको स्क्रिप्ट पढ़नी है, अब उस स्क्रिप्ट पे कुछ भी लिख दो, पढ़ देंगे. ये प्रॉब्लम होती है. This is a long-term project, not a pump and dump. But that didn't happen. Less than a week after all this money was raised, Lana Rhoades vanished from her community and took the money out of the wallet. Here's the main wallet withdrawing over $1.5 million in Ethereum out of the project. Her reason? Things got too negative. Quote, the truth as why Lana hasn't been around was she was very shocked and upset by the amount of negative and rude comments she was seeing in the chat. Now, I personally find this part hilarious. It is. I checked out this Discord. You can't imagine a bigger simp army. These guys were not negative, and I do mean guys, by the way. They put their last dollar into this project, truth be told. And one of them even got like a tattoo of the project logo on them before it rugged. But my point sort of is, this wasn't a negative community at all. In fact, even after they had been scammed, all these people in the community tried to police each other into being nice so that Lana would come back. Yeah. Here's this one is of what the happens holders. every single time. So even in these fucking, तुम्हारी जो भी
दिस फीमेल बेस्ड women based, you know, like कोई women creator है बहुत ज़्यादा strong and there is this very loyal fan following of hers and that's what they do. Like तुम्हें क्या करना है simple, ये भी बड़ी fascinating चीज़ है. I don't think even it has anything to do with female, even men do this. आप चाहें कोई कांड कर दो, बड़े से बड़ा कांड कर दो तुम, ठीक है, कांड करने के बाद बस एक वीडियो बना दो, उसमें ऐसा फिर मुंह बना लो, हमको लोगों ने बुरा कहा, हमारा भी होता वाला वीडियो नहीं, भाई भाई बुरा लगता है, भाई बुरा लगता है, ऐसे मत बुरा करो. पर वो तो काफ़ी सिंसियर वीडियो है एटलीस्ट. यहाँ पे यूट्यूबर्स या फिर क्रिएटर्स, यहाँ पे इवन तुम्हारे स्ट्रीमर्स पे आ जाते हैं, वो दे डू इज जस्ट दे लाइक, उन्हें पता है ये बना दो. ह्यूमंस ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम एम्पैथिक होते हैं नेचर, छोटे से बेबी जब होता है ना, हम तब से एम्पैथी हमारे अंदर होती है. तभी अगर एक छोटा सा बेबी होता है ना और दूसरा बेबी दूर से कहीं रो रहा हो तो बेबी रोने लग जाता है, सिंपैथी. तो हमारे अंदर वो वायर्ड है, किसी न किसी लिमिट पे एम्पैथी वायर्ड है. हो सकता है आपके अंदर 30 हो, किसी के अंदर 40 हो, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो. तो हम देखते हैं ऐसा वीडियो, हमको लगता है यार ये बुरा लग गया यार, चलो ठीक है, स्कैम किया तो भी क्या होता है भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं भाई, टेंशन ना लो भाई. एंड दिस इज अ थिंग दैट वर्क्स वेरी वेल. अगर आप, दिस इज थिंग एटलीस्ट मैंने इन्फ्लुएंसर्स में देखी है, आप कोई भी कांड कर दो, बड़े से बड़ा स्कैम कर दो, एंड दिस इज समथिंग आई रियली बिलीव. यूट्यूबर्स आर अनकैंसलेबल, इन्फ्लुएंसर्स एंड आई थिंक यूट्यूबर्स इन पर्टिकुलर आर अनकैंसलेबल, क्योंकि आपकी फैन कम्युनिटी आपको नहीं छोड़ेगी, बस आपको सेंटी वीडियो बनाना है. Saying, how do you want us to keep it respectful while the whole entire management scammed 6,000 people and took their money and left? And then the person responds, doesn't mean you can't be respectful. I mean, I feel like that tells you everything you need to know. They had just been scammed and still you have people in the chat being like, hey, be respectful about it. And honestly, they use this fact that people were upset that they basically got rug pulled to justify then abandoning the project. Here's actually one of the collaborators informing the community of यार सब गंदा हो गया यार. हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, आदमी सोच के किया था कि यू नो जो भी चीज़ होंगी बड़ी पॉजिटिविटी में होंगी, सब कुछ बढ़िया कूल एनवायरनमेंट होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, हम सब मदद करेंगे दूसरे की, बहुत ही हम ग्रो करेंगे साथ में, ये सब बुलशिट आपने सुनी हुई है. एंड अब सब पूरा कड़वा हो गया, इसलिए हम खत्म कर रहे हैं. They said, good morning. I chatted to CryptoSys about my NFT. Lana isn't interested in continuing, mainly because she felt part of her Discord community was cruel, and she didn't want to have to look at comments. That's right, guys. Lana Rhodes doesn't want to have to look at cruel comments. Just because you can't feed your kids now, it doesn't mean it's okay for you to get negative on her. Oh, by the way, yeah, that same post, that collaborator, they actually said they'd be releasing their own NFT project in the same sentence. So they basically said, you guys got scammed. And so look out for NFT Scam Part 2. And you might be thinking, who would fall for this? Well, the same people But she's another porn star, right? Mia Malkova. bought the first one. Because look here. They said, quote, go show her some love, talking about this person. Let's prove we are not toxic. She can still save us. I mean, at this point, it's pretty sad, isn't it? You got rug pulled and you're about to It's go human into nature. a second rug pull. It's human nature. I mean, again, I want to help you guys, but there's only so much I can do. You cannot help anybody. This is also another thing that I've noticed. आप चाहे कितना लोगों को अवेयर कर दो, पैसा कमाने वाला, जिसको आपसे पैसा कमाना है, जिसका आपका बेसिकली जेब में हाथ डाल के आपसे पैसा निकालना है, उसकी स्कीम, उसकी पिच एनी मदर फकिंग डे बेटर होगी. वो निकाल लेगा, चाहे आप कितना यहाँ पे चिल्ला लूँ मैं भाड़वा की तरह कि भाई मत कर, यहाँ पे वहाँ पैसा मत डाल, अबे खुद से कर ले, अबे खुद से देख ले, पहले खुद से पूरी चीज़ को स्कोप कर ले, तो खुद से भी सब चीज़ें सीख सकता है. यहाँ पे पैसा डाल मत डाल, लाण किसी को फर्क नहीं पड़ता. मैंने चीज़ देख ली, मैं इस इकॉनमी में जी रहा हूँ और मेरे सब जानने वाले ही हैं, वो कितना पैसा बना रहे हैं मेरा दिमाग उड़ जाता है सुन के. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज लोग यू नो मोस्टली बहुत भारी मात्रा में लोग, एंड स्पेशली इस करंट एज ऑफ इंटरनेट में, क्योंकि ये स्कैम जनरेशन है या फिर स्कैम फेज है इंटरनेट का. आई थिंक आफ्टर 30 to 20 years एटलीस्ट आई एम होपिंग कि लोग थोड़े से मैच्योर होंगे, या फिर एटलीस्ट मेरे जो बच्चे की जनरेशन होंगे, या फिर तुम सबके जो बच्चों की जनरेशन होंगी, दे वुड बी मच मोर, आई डोंट नो, मे बी नहीं होंगी, इट्स जस्ट अ होप, मे बी दे वुड बी मोर एटलीस्ट इंटरनेट savvy वर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट इंटरनेट अवेयर, स्कैम्स अवेयर, कि भैया ये तो पिच एज ओल्ड है और सैचुरेशन आ चुका होगा, क्योंकि हम पहली जनरेशन है जहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं. तो हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनेगी. जो करंट लोग इस वक्त इंटरनेट बैठे हैं, दे आर द मोस्ट प्रोन टू फकिंग, उनसे आप चूतिया बनाओ, कुछ भी बेच के बाज के, कुछ भी बना दो, कुछ भी, कोई भी नाम कर दो. यूट्यूबर से चूतिया बना रहे हैं, कोर्स बनाने वाले भी चूतिया बना रहे हैं, कोई जिसको मिले वो चूतिया बना के कुछ भी बेचो, बस बेचते चले जाओ. एंड इट वर्क्स बिकॉज if you're going to do that, you know what I mean? There's only so much we can do. So yeah, that's basically the story. What did we learn from this? Hopefully nothing. True. Hopefully all of this was
it will keep happening as well. Obvious to you. If it wasn't, you need to pump the stock. Honestly, Zilla, hey, it's free. You're not going to get rugged this time. It's impossible. Just like and subscribe. It's absolutely free. And you need to watch a lot more of this channel.